اب ہمارے سر علی جناب محترم مناز کرم صاحب ہمارے پیارے ہیں، وہ آپ لوگ کو بہت اچھا ہے۔ آج نیو لائف پبلک اسکول کے عزیز بچوں، آج آپ تمام حاضرین کو آج کے اس یوم آزادی کی قلبی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہمارا ہندوستان گوشے گوشے میں آزادی کی خوشیاں منا رہا ہے۔ ہم سب لوگ اس بات کے لیے خوش ہیں کہ آج ہمارا ملک آزاد ہو چکا ہے، اور یقیناً انگریزوں سے ہم آزاد ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی ہمارا سماج کچھ چیزوں کا غلام ہے، اور اس کی آزادی کی ضرورت آج بھی ہے، اور اس کی لڑائی آج بھی ہمیں لڑنی پڑے گی۔ آج بھی ہمارا سماج، جس سماج سے ہم تعلق رکھتے ہیں، جس سماج سے ہم آتے ہیں، جس سماج کی تعلیم و ترقی کے لیے آج نور القمر جیسے ہمارے عزیز رات دن کوشش کر رہے ہیں، آج بھی ہمارا سماج یقیناً تعلیم کے اعتبار سے بہت پیچھے ہے۔ ہم عالمی پیمانے پہ یا دوسری قوموں کے مقابلے جب ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی ہم جہالت سے جکڑے ہوئے ہیں، اور تعلیمی معیار میں ہمیں جہاں ہونا چاہیے اس معیار تک ابھی نہیں پہنچے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج دوسری قوموں کا مقابلہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اور زبانی طور پہ ہم کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم یقینی طور پہ اس کے مد مقابل نہیں آ جائے، اور مد مقابل تبھی آئیں گے جب ہمارے بچے، ہماری نسلیں تعلیم یافتہ ہوں گی، اور اس معیار کی تعلیم یافتہ ہوں گی جس معیار کی آج ضرورت ہے، اس سماج کو ضرورت ہے۔ تو آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے عزیز بھائی نور القمر کو، میرا شاگرد رہا ہے۔ 1947 میں دیش آزاد ہوا، لیکن جب میں پوکھیرا کی سرزمین پہ آیا اور میں سنتا تھا کہ پوکھیرا علم و ادب کا گہوارہ ہے، مدینہ العلماء ہے، مرکز اہل سنت ہے، لیکن جب میں اپنی نگاہیں اٹھاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ آج بھی پوکھیرا کی ایک بڑی آبادی جاہل ہے، اور ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو کہتے ہیں کہ پوکھیرا علم و ادب کا گہوارہ ہے۔ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے۔ جب آپ واقع نمبر 4 کے قریشیوں کو دیکھیں گے، شاہ محلہ کے شاہ لوگوں کو دیکھیں گے، شاہ کے ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کو آج بھی جن کے گھر میں نہ دینی تعلیم ہے نہ اصلی تعلیم ہے، تعلیم کیا چیز ہوتی ہے اس کو آج تک انہوں نے نہیں جانا ہے۔ تو اس وقت میں نے کوشش شروع کی تھی، اور اس وقت آئیڈل کنڈرگارٹن کی بنیاد میں نے ڈالی، اور وہیں کے پروردہ آج حضرت بابو ہوں، نور القمر بابو ہوں، اشرفی بابو ہوں، ان لوگوں نے آج جو ٹھیکہ لے رکھا ہے سماج کو آگے بڑھانے کا، اپنے وقت کی قربانی دے کر کے جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں نور بابو، میں تمام پنچایت واسیوں کی اور سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری قلبی دعائیں کل بھی آپ کے ساتھ تھی اور آج بھی ہیں۔ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا کام ہے، یہ یقیناً اس کا صلہ آپ کو نہیں مل پائے گا، کیونکہ جو آپ کی عمر گھٹ رہی ہے وہ دھیرے دھیرے قربانی کی شکل میں عوام کے لیے پیش ہو جائے گی، کیونکہ میں نے خود قربانی کی ہے، 1 دن 2 دن کی نہیں کی ہے، 25-30 سال تک میں نے لگاتار اس کام کو کیا ہے۔ لیکن آج فخر ہے مجھے اس بات پہ کہ آج ہزاروں کی تعداد میں ہمارے اسٹوڈنٹ، ہمارے شاگرد مختلف یونیورسٹیوں میں، مختلف کالج میں پڑھ کر کے کامیاب ہیں، اور مجھ سے اعلیٰ عہدے پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو اس بات کو آپ سن لیجیے کہ جب تک کہ آپ کی قوم کا بچہ تعلیم یافتہ نہیں ہوگا، جب تک آپ بھوکے پیٹ رہ کر اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ نہیں کریں گے، آپ سماج کے اس مقابلے میں کبھی نہیں آ سکتے ہیں۔ اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کا سینے سے اسرائیل مرد آباد نہیں ہو جائے گا، بلکہ اسرائیل سے بڑی طاقت بنانے کے لیے آپ کو بیٹوں کو ویسا ہی سائنٹسٹ بنانا ہوگا جو اس سے خطرناک ہتھیار بنا سکے، جو اس سے زیادہ طاقتور ہو سکے، جو اس سے زیادہ تعلیم یافتہ ہو سکے، جو اس سے زیادہ ٹیکنالوجی حاصل کر سکے۔ جب اس کی ٹیکنالوجی اس سے زیادہ حاصل ہوگی تبھی جا کر کے آپ اس پر فاتح ہو سکتے ہیں۔ صرف مرد آباد کر دینے سے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتے، اس کے لیے لائحہ بنانا پڑتا ہے، اور اس کا واحد طریقہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دینی ہوگی، اور اس بہتر تعلیم دینے کے لیے جو بھی پریشانیاں اٹھانی پڑے وہ پریشانیاں اٹھانی ہوں گی۔ کبھی بھوکے پیٹ بھی رہنا ہوگا، کبھی ننگے پاؤں بھی چلنا ہوگا، کبھی تن پہ کپڑا بھی نہیں ہوگا، کبھی گھر کا چولہا نہیں چلے گا، لیکن بچوں کی کتاب ضرور خریدانی چاہیے، بچوں کو ڈریس ضرور ملنا چاہیے،
बच्चों के तालीम में कभी कोई समझौता नहीं होना चाहिए, तभी हमें सच्ची आजादी मिलेगी और तभी हम आजाद हो सकेंगे। सिर्फ कह देने से कि हम आजाद हो गए हैं, हमारा देश अंग्रेजों से तो आजाद हो चुका है, लेकिन आज भी हम माशी तौर पे आजाद नहीं है। आप चले जाइए तो आज भी आपको ऐसे घराने मिलेंगे जो माशी तंगी के शिकार है, तालीमी तंगी के शिकार है, समाजी तंगी के शिकार है, और ये सारी चीजें तभी मिलेंगी जब आपके बच्चे तालीम हासिल करेंगे। ये चीज इनकलाब एक दिन और 2 दिन में नहीं आता है। इस इनकलाब को लाने के लिए, तब्दीली को लाने के लिए मेरे छोटे छोटे बच्चों, आप ही में से पढ़ लिख करके कोई इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, कोई हाफिज बन सकता है, कोई कारी बन सकता है, कोई आलिम बन सकता है, कोई खतीब बन सकता है, कोई साइंटिस्ट बन सकते हैं, लेकिन तभी बन सकते हैं कि आप मेहनत करें और आपके वालिदैन आपकी हिमायत करें और सपोर्ट करें, तभी कामयाब हो सकते हैं। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके वालिदैन ने कभी वो ख्याल में नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इस मुकाम तक जाएगा, लेकिन आज उनके बच्चे उस मुकाम तक पहुंचे हुए हैं कि देख के हमें फख्र होता है और गर्व होता है। और हम कहते हैं कि फला शख्स हमारे गांव के हैं, फला शख्स हमारे गांव के हैं, फला शख्स हमारे गांव के हैं, लेकिन आज भी मैं ये कह के जा रहा हूँ तो मेरा इल्म व अदब का गवारा नहीं है। जो लोग बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। इल्म व अदब का गवारा उस वक्त कहलाएगा जब हमारे कोमैरा और कुल जवान का एक एक तक तालीम याफ्ता हो जाएगा और वो तालीम की अहमियत को समझ जाएगा, ये समझेगा कि हम मुसलमान क्या होता है, इंसान क्या होता है, इंसानियत क्या होती है, समाज में जिया कैसे जाता है। जहाँ रमजान के महीने में शराब और तारीफ की जाती हो, उसे इल्म व अदब का गवारा मदीनतुल उलमा कह देने से, हाथ तरफ के कह देने से कि मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूँ और मैं सबसे बड़ा इंसान हूँ, मैं सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता हूँ, कह देने से केवल नहीं हो सकता है, बल्कि अमली तौर पर उसका होना जरूरी। क्या आप कह सकते हैं कि पोखरा इल्म व अदब का गवारा जहाँ की 30% आबादी को आज भी दस्तखत करने नहीं आता? मैं दावे के साथ करता हूँ कि जहाँ की 30% आबादी को आज भी दस्तखत करने नहीं आता है, मुका छाप है। आप एक बार वार्ड नंबर 4 को बुलाइए और 5 को बुलाइए तो आप देखिएगा कि मुश्किल से 10, 20, 25 लोग कहीं निशान साइन कर देंगे तो कर देंगे, बल्कि पूरी की पूरी आबादी जाहिर है। तो मेरा फर्ज बनता है कि जब तक हम यहाँ से हैं, हमारी कोशिश होनी चाहिए उन लोगों को भी तालीम याफ्ता बनाने के लिए पहल करे। मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम लोगों को जो स्कूल चला रहे हैं, चाहे राही बाबू हो, हसरत बाबू हो, नूरुल कमर बाबू हो, गुलाम मुदस्सिर हो, अशरफी बाबू हो या राजू बाबू हो, ये सभी शागिर्द रहे हैं। इसमें से ज्यादातर मेरे शागिर्द रहे हैं, लेकिन हकीकत माने में इल्म व अदब का गवारा बनाने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं और अपना वक्त दे रहे हैं। मुबारकबाद, काबिल मुबारकबाद। और यौम आज़ादी के तमाम लोगों को मुबारकबाद। लेकिन ये यौम आज़ादी की अहमियत मेरे बच्चों आपको तब समझ में आएगी जब आप तालीम हासिल करेंगे, आप मेहनत से पढ़ेंगे और माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। माँ बाप आपको बड़ी मेहनत से पैसा देते हैं, कपड़ा देते हैं, घर खरीद के देते हैं, कहाँ से इंतजाम करके पैसा देते हैं। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दीजिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और सोचिए कि हमारे माँ बाप पैसा कहाँ से परेशानी उठा करके हमको पढ़ाना चाहते हैं। उनके शौक को पूरा कीजिए, उनकी ख्वाहिश को पूरा कीजिए। आपके बाप नहीं पढ़ सके, आपके दादा नहीं पढ़ सके, कोई बात नहीं है, आप पढ़ के कामयाब करके दिखा दीजिए। ये दादा का बेटा है। मेरी नेक दुआएं, मेरी नेक तमन्नाएं आप तमाम लोगों के साथ है। मेरे बोलने में, आपके सुनने में या किसी के समझने में अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहते हुए, क्योंकि हक बोलना मेरी आदत है और हक बोलता रहा हूँ। मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं देखा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हक बोलने की फितरत है, हक बोलने की आदत है, सामने कुछ भी हो। क्योंकि ये सच्चाई है कि पोखरा इल्म व अदब का गवारा नहीं है। मैं कल भी कहता था और आज भी कहता हूँ, मैं माइक पे उस दिन कहूँगा जब मेरे पोखरा का एक एक बच्चा तालीम याफ्ता हो जाएगा और कोई अंगूठा छाप नहीं होगा तो सबसे ऊंचा माइक लगा के कहूँगा क्या चूड़े पोखरा की सरजमीन पे कोई अंगूठा छाप नहीं है। हर सब तालीम आज यहाँ दस्तखत करना जानता है, हर घर में तालीम पहुंची हुई है, लेकिन आज अभी तक पहुंची हुई नहीं है। इसलिए केवल इल्म व अदब का गवारा नहीं कहा जा सकता है। आज ये नूरुल कमर साहब हो, कारी तौसीफ साहब हो या जो लोग भी आज इस तालीम के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, वो सारे लोग काबिल मुस्तहिक है। और उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पोखरा वालों की तरफ से। इस आयबतली में आज आपको तालीम का जो भी माहौल बना है उसमें हमारे नूरुल बाबू का बहुत बड़ा रोल है। घर घर जा करके बच्चों को लाए, पढ़ाए हैं। ये सच्चाई है। आपकी कई मसले बीत जाएंगे लेकिन आप तरक्की नहीं करेंगे। अगर पैसा कमा लेने को आप तरक्की समझते हैं वो चंद दिनों के लिए है, उसमें वो इज्जत नहीं है जो तालीम में है। आप पैसा तो हासिल कर सकते हैं लेकिन इज्जत हासिल करने के लिए समाज के मध्य मुकाबले बनने के लिए
बच्चों को तालीम याफ्ता बनाना हो। और उस बनाने के लिए आपको भीख भी अगर मांगना पड़े तो उसमें शर्म की बात नहीं है। जमीन भी बेचनी पड़े तो उसमें शर्म की बात नहीं है। जमीन बेच लीजिए, कर्ज ले लीजिए, बच्चे को पढ़ा लीजिए। अगर आपके बच्चे को पढ़ा दिया वही आपकी सच्ची मोहब्बत। गाड़ी तौसीफ साहब आपने बहुत अच्छा सब खरीद कर दे दिया, ये बच्चे की मोहब्बत नहीं है। आपने बहुत अच्छा जूता खरीद दिया, उसको डेली आप गोश्त खरीद के खिलाते हैं, आप अच्छे अच्छी गजा उसको देते हैं, ये सच्ची मोहब्बत नहीं है। ठीक है, वो बच्चा है, आपकी मोहब्बत आप चाहते हैं अच्छा करे। कुछ चीजों से ज्यादा जरूरी है कि आप कपड़ा कुछ सस्ता खरीद के दीजिए, जूता कुछ सस्ता खरीद के दीजिए, रोटी कुछ कम करके खिलाइए, लेकिन पढ़ा के दिखा दीजिए। यकीन जानिए कि आपका भी नाम रोशन करेगा, खुद का भी नाम रोशन करेगा, इस समाज का नाम रोशन करेगा। और आदमी पैमाने पर हमारी कौम का एक ताकतवर इंसान बनकर के उड़ेगा। यही हमारे समाज की जरूरत है और यही हमारे समाज की जरूरत है। मेरे बच्चों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि पढ़ने के लिए कभी भी समझौता मत करना। जब सच्चे दिल से मेहनत करोगे कि कामयाब बनोगे, और नहीं करोगे जाकर के देख लोगे कि लोग मजदूरी करके किस तरह से खटते हैं। दिल्ली में, बम्बे में, कलकत्ते में, बाहर में जो नहीं पढ़ते हैं वो आज आप देख सकते हैं वहाँ किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं। इसमें मेहनत कीजिए, आपके माँ बाप पैसा देते हैं, पढ़ने के लिए फीस देते हैं, किताब देते हैं। आज आप लोगों को जो मैसर है वो हम लोग के वक्त में मैसर नहीं होता था। इस तरह का कपड़ा हम लोगों को नहीं मिलता था उस जमाने में, और बहुत सस्ते जोड़ी वाला कपड़ा, हवाई चप्पल पहन के हम लोग स्कूल जाते थे। पढ़िए, मेहनत कीजिए, और एक बार फिर आप लोगों का मुबारक देते हुए तमाम लोग जो मौजूद है तमाम लोगों को मुबारक देते हैं। खुदा हाफिज। और खास करके नूर कुमर बाबू को मेहनत कीजिए, लगन कीजिए, आपका ये सिला इंशाअल्लाह अल्लाह देगा। ये कौम को नहीं दे सकती, ये समाज नहीं दे सकती, लेकिन अल्लाह का सिला आपको जरूर फरमाएगा। खुदा हाफिज।